SBA Publications. Hello everyone, how are you all? I hope you are happy and healthy at your home. So, I'm your mentor Nisha Gola. Today we will learn about chapter number 5 and the name of the chapter is division. Okay, so student, what is division? So, division is like that when we divide something in groups. Okay, so let's start our chapter. So, here question is given that divide these 10 candles into groups of 2 each. Into how many groups can you divide the candles? तो यहाँ पर हमें 10 कैंडल्स दी हुई हैं और उन्हें हमें क्या करना है 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है. ठीक है, तो हमें बताना है इससे हमारे कितने ग्रुप बनेंगे. सो हेयर आर 10 कैंडल्स. ओके, एंड वी हैव टू डिवाइड इट इन 2 of each group. So here 2, यहाँ तो इस तरह हम इसको डिवाइड कर देंगे. तो 2 candles are here. Now we have to count each group. How many groups are there? So 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 groups. Okay. So total candles are our dividend, that is 10. Number of candles in a group is our divisor, that is 2. And how many numbers of groups are there? 5. So 5 is our quotient. Okay बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं. आगे हमें दिया हुआ है put these 25 laddus in 5 plates such that there are an equal number of laddus in each box. तो there are 25 laddus total और हमें क्या करना है, उनको 5 प्लेट्स में इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक प्लेट में 5 लड्डू आए. ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 लड्डू रखे. तो देयर आर टोटल 25 laddus, that is our dividend. Just like 5, we put 5 laddus in a plate, that is our divisor. And how many plates are there, or we can say that how many groups are there. So there are 5 groups. So this is our quotient. Just like that, third question, find the quotient using tables. So here we have to use tables. So the question here 8, 40 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, and then we count table of 8. So 8 5s are 40. So what will be the quotient? Quotient will be 5. Just like that you have to solve all these questions. Okay, so we will move to the next. Next is our exercise 5.1. In this, fill in the boxes. So whenever we divide any number by 1, so the answer is number itself, means here the answer will be 29. Okay, just like that, it is 876 is our answer and this is our quotient. So what will be the dividend? 876, because we divided it by 1. Just like that we have to solve all these questions, and here when we divide a number by 0, so we have the answer 0 only. Okay, next, divide and then check whether dividend equals to divisor. Multiply quotient plus remainder. So here we have 29 divided by 5. So first we have to divide. पहले हम divide करेंगे 5 29 से. Okay, so here पहले हम टेबल करेंगे 5 5s are 25, then we have 4, that is our remainder, it is our quotient, and this 5 is our divisor and 29 is our dividend. Okay बच्चों, तो अब हम इसको देखते हैं. हमें चेक करना है कि ये है कि नहीं. तो हमारा चेक करने के लिए हमें क्या करना है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई quotient plus remainder.
ओके, सो फर्स्ट वी चेक इट. सो हमारा डिविडेंड है कितना 29 एंड डिवाइजर है 5. इसी तरीके से क्वेश्चन भी हमारा 5 है और रिमाइंडर हमारा बचा है 4. अब हम इसको सोल्व करेंगे. 5 5s are 25 plus 4, that is also 29. So we can say that our divide is right. Okay, चलिए आगे देखते हैं. आपको ये बाकी के क्वेश्चन अपने आप करना है इसी तरीके से. आगे है हमें डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000. तो जब भी हमें डिवाइड करना है 10, 100 और 1000 से, तो वो किस तरीके से होगी. तो डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, जस्ट लाइक हियर 88 इज देयर. 10 को हमने 10 8 जा 80, सो आवर रिमाइंडर विल बी 8. तो हियर वी कैन राइट quotient is 8 and remainder is 8. Okay, so this question is also just like that. Okay, next we will move to the another question. Here are some question of mental maths. Find the quotient and remainder without doing long division. अब हमें क्या करना है, long division के बिना इसका quotient और क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है. तो 10 5 से कितना होता है बच्चों 50, दैट इज आवर क्वोशिएंट. एंड क्या बचेगा, अब उसमें से माइनस करेंगे तो 8, इट इज आवर रिमाइंडर. ओके, सो जस्ट लाइक दैट यू हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिवाइड अ नंबर बाय 100. अब 100 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे. यहाँ डिवाइजर हो गया हमारा 100, 129 है हमारा डिविडेंड. तो हमने कि इसको सोल्व 100 बन जा 100, तो ये कितना बचा 29. तो हमारा क्वोशिएंट हो गया 1 एंड रिमाइंडर हो गया 29. ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर. ओके, सो नेक्स्ट हियर अगेन मेंटल मैथ्स क्वेश्चन. फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर विदाउट लॉन्ग डिवीजन. तो अब हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी है, सीधा हमें क्या बताना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. तो 100 6 होते हैं 600, जो हम इजीली लिख सकते हैं. तो 6 हो गया हमारा क्या क्वोशिएंट, और इसमें से जब हम 600 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 14, दैट इज आवर रिमाइंडर. ओके, जस्ट लाइक दैट यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चंस. नेक्स्ट, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1000. सो here is 1000 is our divisor and 6782 is our dividend. Okay, so 1000 6 is 6000, so we minus it, so we have 782, that is our quotient is 6 and remainder is 782. Okay, next is given horse question. So here is the question is, Sandesh has collected 2260 rupees for an orphanage. He has notes of 10 rupees and 100 rupees. If he has 6 notes of 10 rupees, how many notes of 100 rupees does he have? तो एक संदेश है, उसके पास क्या है, उसने ऑर्फेंज के लिए टोटल पैसे कलेक्ट किए हैं, टोटल मनी दैट इज 2260 रुपीज़, और उसके पास नोट्स हैं 10 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के. अगर उसने दिया है, अगर 10 रुपीज़ के नोट्स उसके पास कितने हैं 6, ठीक है. तो हमें बताना है 100 रुपीज़ के नोट्स उसके पास कितने होंगे. तो 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं 6, तो मीन्स कितने रुपीज़ हो गए 60 रुपीज़, और देयर आर टोटल अमाउंट इज 2260. First we minus it, 0 0 2200. So 2200 जो मनी बची है हमारे पास वो क्या है, हमें हंड्रेड्स के नोट्स हैं सारे. तो हमें बताना है हंड्रेड्स के नोट कितने होंगे. तो हम क्या करेंगे, अब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे. सो हियर इज 100 2 200, माइनस करेंगे, फिर 0 कैरी करेंगे, 200 2. It means we have 22 notes of 100. Okay, next we have, so student, now we have exercise 5.2 and the first question is, using rules of division by 10 find the quotient and remainder.
तो हमें अब रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकालना है रूल्स ऑफ डिवीजन को यूज करते हुए। तो यहाँ पर हमें दिया है 88 डिवाइडेड बाय 10, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 10 8 80 एंड माइनस करेंगे तो क्या आया 8, तो दिस इज आवर क्वोशिएंट 8 and this is our remainder 8. So here we can write quotient equals to 8 and remainder equals to 8. Okay, just like that you have to solve all the parts of this question. Now move to the next question, that is using rules of division by 100 find the quotient and remainder. तो अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है और क्वोशिएंट डिवाइड किससे करना है, 100 से. So here 100 and we have to divide 8 673. So 106 are 600, माइनस करेंगे कितना आया, 3 में से 0 गया 3 एंड 7 में से 0 गया 7. तो दिस इज आवर रिमाइंडर एंड दिस इज आवर क्वोशिएंट. सो वी कैन राइट हियर क्वोशिएंट इक्वल्स टू 6 and remainder equals to 73. Okay, now next question is given that using rules of division by 1000 find the quotient and remainder. Now we have to divide it by 1000. Here can we write 3872 and we have to divide it by 1000. Okay, so 1000 threes are 3000. Now we have to subtract it 2 minus zeros, 2, 7 minus 0 7 and 8 minus 0 872. So here we can write quotient equals to 3 and remainder equals to 872. Okay, so you have to solve these question. इसी तरीके से करना है आपको सारे क्वेश्चन. एक एक मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, आगे आप करेंगे खुद से. आगे देखते हैं बच्चों. नाउ वी हैव डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स. ओके, कि जब हमें लार्ज नंबर्स को डिवाइड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे. तो डिवाइडिंग बाय 1 डिजिट नंबर. ओके, सो यहाँ पर अब जो हमारा डिवाइजर है वो हम क्या ले रहे हैं, 1 डिजिट नंबर ले रहे हैं. ओके, सो स्टार्ट हियर. The question is divide 7263 by 9 and check your answer. So first we have to do, start from extreme left. तो हम इधर इस लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. ओके, since 7 is less than 9, 9 से क्या है, 7 जो है वो छोटा है. We take 72 together. तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट लेंगे, that is 72. नेक्स्ट 72 9 के टेबल में आता है कितनी बार पे, 8 टाइम्स पे. 9 8 जा 72. सो 72 को हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ क्वोशिएंट आ गया हमारा 8. ओके, तो अब इसको माइनस करेंगे, हम आया 0. नाउ वी ब्रिंग डाउन 6. ओके, सो ब्रिंग डाउन 6 एंड नाउ इज ऑल्सो 6 इज लेस देन 9. तो 6 क्या है, 9 से छोटा है, तो हो जाएगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा. तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0. Then we also bring down 3 also. So bring down 3. Now we have to divide 63 by 9. So here 9 sevens are 63. Now we have to subtract it. We have 0. तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे और इसमें हमारा क्वोशिएंट आ रहा है 807 एंड रिमाइंडर है 0. और हम इसको चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने किया था. कैसे चेक करेंगे, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. तो हमने इसको सोल्व किया तो ये आ गया हमारा 1263. दैट इज आवर डिविडेंड. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट हियर इज गिवन मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस. फाइंड इन द बॉक्स. तो बॉक्स में क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. Here 2, it means we have to multiply 3 by 2. 3 2s are 6. Now we have to subtract it. अब आया हमारे पास 2.
5 को हम ब्रिंग डाउन करेंगे 25, तो 24 कितने बार पे आएगा, 3 8 जा 24। अब इसको फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, अब हो गया हमारा ये 15। और 15 कितने बार पे आता है, कितने टाइम्स पे आता है 3 की टेबल में, 5 टाइम्स, 3 5 जा 15। और अब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आया 0 एंड क्वोशिएंट आया 285। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करना है। अब आगे हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3। हियर इज ऑल्सो क्वेश्चन इज गिवन, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो हमें यहाँ पहले डिवाइड करना है, उसके बाद अपने आंसर को चेक करना है। सो लेट्स डू इट। यहाँ हमें दिया है 6752 को डिवाइड करना है हमें 9 से। ओके, सो 6 इज लेस देन 9, 9 से छोटा है 6, तो हम 2 डिजिट लेंगे, दैट इज 67। 9 टेबल काउंट करेंगे, तो 9 7 जा 63 वी हैव। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 3 गया 4 एंड 6 में से 6 आया 0। अब 4 तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को ब्रिंग डाउन करेंगे, ये आ गया 9 5 जा 45। हेयर 5 में से 5 गया 0 एंड 4 में से 4 गया 0। अब हमारे पास बचा है 2, उसको हम ब्रिंग डाउन करते हैं तो ये आया 2। अब 2 क्या है, 9 से छोटा है, लेस देन 9, तो हम क्या करेंगे, ये जा नहीं सकता, तो यहाँ पुट करेंगे हम 0। ओके, सो हेयर वी हैव quotient equals to 750 and remainder equals to 2 and we have to check it also. So कैसे चेक करेंगे, quotient multiply divisor plus remainder. Okay, तो quotient is our 750 and divisor is 9 plus remainder is 2. अब हम इसको सोल्व करते हैं, 750 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 से किया 0, 9 5 से 45, 4 हो गया हमारा कैरी, 9 7 जा 63, 63 एंड 4 67 प्लस वी हैव टू ऐड रिमाइंडर ऑल्सो। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 6752। सो इट इज आवर डिविजन, इट इज सेम, इट मीन्स आवर डिवीजन इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस सोल्व करने हैं बाकी के, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। नाउ वी हैव डिवाइडिंग बाय 2 डिजिट नंबर। अभी जो हमने सीखा था उसमें हमने क्या किया था, 1 डिजिट नंबर से डिवाइड किया था, अब हम करेंगे 2 डिजिट नंबर से डिवाइड। So here is an example that divide 78,934 by 35। अब हमें इसे 35 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 78 को हम क्या करेंगे, 35 से जब डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 2 आता है और रिमाइंडर हमारा बचेगा, ये हो गया 35 2 जा 70, इसमें से हमने माइनस किया तो 8 और 9 को ब्रिंग डाउन किया है। नाउ वी हैव 89 और उसको फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 2 जा 70, फिर हमने इसको माइनस किया, 9 में से 0 गया 9 एंड 8 में से 7 आया 1 और 3 को हम ब्रिंग डाउन करते हैं, दिस इज 193। अब 193 को क्या करेंगे, हम देखेंगे 35 की टेबल में, 35 5 जा होते हैं हमारे 175 जो 193 से छोटा है, तो अब इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ बचेगा 8, 8 में 7 गया 1 और 4 को हमने किया ब्रिंग डाउन। सेम अब हम चेक करेंगे 35 की टेबल में 184 या 184 से छोटा नंबर, तो ये आ गया 5 टाइम्स पे 175। अब हमने इसको माइनस किया तो कितना आया 9। तो हेयर वी हैव आवर क्वोशिएंट इज 2255 and our remainder is 9 and now we have to check our answer। तो चेक करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो हमारा डिवाइजर था 35 और क्वोशिएंट था 2255 और फिर हम प्लस करेंगे 9। नाउ वी हैव द आंसर
78,934, that is our dividend. It means our division is correct. Okay, now move to the next example. So here we have divide 86,305 by 43. तो 43 से अब हमें क्या करना है, 86,305 को डिवाइड करना है. तो 43 टू जा कितने होंगे हमारे 86. ओके, तो 86 6 में से 6 किया 0 एंड 8 में से 8 माइनस किया 0. अब हम करेंगे 3, हमने ब्रिंग डाउन किया लेकिन 3 क्या है, इससे स्मॉल नंबर है, लेस देन है, तो हमने 0 पुट कर दिया. अब फिर हमने 0 फिर से ब्रिंग डाउन किया, ऊपर से सेकंड डिजिट, इट ऑल्सो बिकम 30, दैट इज लेस देन 43. तो ये भी 43 से छोटा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट में एक 0 लगा देंगे. नाउ वी हैव टू ब्रिंग डाउन 3 1. नाउ वी हैव टू ब्रिंग डाउन 1, सो द नंबर बिकम 301. अब 301 को हम देखेंगे कि 43 की डबल में आता है कि नहीं आता, तो ये आता है 7 टाइम्स पे. तो ये हो गया 43 7 जा 301. सो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 0 एंड 3 में से 3 गया 0. सो हियर वी हैव क्वोशिएंट इज 2007 एंड रिमाइंडर इज 0. एंड नाउ वी हैव टू चेक आवर आंसर. तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर से उसको प्लस कर देंगे. तो डिवाइजर है हमारा 43, क्वोशिएंट है हमारा 207 और रिमाइंडर है 0. तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया हमारा 86,301, और जो क्या था हमारा डिविडेंड था. इट मीन्स आवर डिवीजन इज करेक्ट. ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे चलते हैं. अब आगे हमें दिए हैं इससे कुछ क्वेश्चंस. ओके, that is our exercise number 5.4. so here we have question divide and check your answer. तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है और फिर अपने आंसर को चेक करना है. ठीक है, तो हम डिवाइड करके देखते हैं. 19 को करना है हमें दिया है डिविडेंड हमारा 5,787 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 19. तो हमें पता है 5 दैट इज लेस देन 19. 5 क्या है, 19 से छोटा है. तो हम क्या करेंगे, दूसरी डिजिट और लेंगे, दैट इज बिकम 57. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 19. नाउ वी हैव टू चेक कि 57 19 की टेबल में आता है या उससे छोटा. ठीक है, तो 19 टू 38 and 19 3s are 57. Okay, now we have to subtract it. 7 minus 7 0, 5 minus 5 0. Now we have to bring down 8. 8 is smaller than 19, so here we have to put 0 in our quotient. Now we have take also 7 bring down. और अब हम देखेंगे 87, और 87 को 19 की टेबल में आता है या फिर उससे छोटा लेंगे. ठीक है, तो we have 19 4s are 76. Okay, 19 5s are 95, that is greater than 87. So we have taken only 19 4s are 76. So here we have 1. 7 में से 6 माइनस किया 1 and 8 में से 7 माइनस करेंगे 1. It is our remainder and it is our quotient. And now we have to check it. तो चेक करने के लिए हमें पता है क्या करना है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं डिवाइजर हमें कितना दिया हुआ है 19, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट हमारा कितना है 304 एंड हमारा रिमाइंडर कितना है 11. ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे. 19 4s are 76 and 19 3s are 57 and now we have to add our remainder. तो हम इसमें जब ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 7 8 7 5. तो it is 5,787, that is same like our dividend. So our division is correct. Okay बच्चों, तो इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन सोल्व करने हैं.
ठीक है। तो अब हम देखेंगे एस्टिमेशन इन डिवीजन। तो वी यूज एस्टिमेशन इन डिवीजन in which we round off the dividend and divide it to get the estimated quotient। तो हम क्या है, डिवीजन के टाइम पे एस्टिमेशन का यूज कब करते हैं, जब हम क्या करना होता है, हमें राउंड ऑफ करना होता है। किसको करेंगे, डिविडेंड को और डिवाइजर को। फिर जो हमारा क्वोशिएंट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, राउंड ऑफ निकलेगा। ठीक है, जो हमारा एस्टिमेटेड क्वोशिएंट होगा। तो विच इज क्लोजर टू द ओरिजिनल क्वोशिएंट। जो हम अगर ओरिजिनली डिवाइड करते हैं तो जो ओरिजिनल क्वोशिएंट निकलेगा उसके क्लोजर होगा, आसपास होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एस्टिमेट द क्वोशिएंट बाय डिवीजन। तो यहाँ हमें एस्टिमेशन करनी है। तो एस्टिमेट द क्वोशिएंट 623 एंड डिवाइडेड बाय 8। तो पहले हम क्या करेंगे, डिविडेंड का एस्टिमेशन निकालेंगे। तो 623 जो है वो क्या है, राउंडेड ऑफ है 620 के पास, जो क्या है नियरेस्ट 10 है। एंड 8 इज राउंडेड ऑफ टू 10। 8 किसके पास आएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो नियर बाय 10। तो हम अब लिखेंगे 623 का एस्टिमेशन 620 एंड 8 का एस्टिमेशन 10। नाउ वी हैव टू डिवाइड इट। तो वी हैव 62 as a quotient। तो the quotient should be nearly 62, कि अगर ओरिजिनल क्वोशिएंट जो होगा वो किसके आसपास होगा, 62 के आसपास होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज एस्टिमेट द क्वोशिएंट 704 divided by 22। So first we have to estimation of 704, that is our dividend। 704 का राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 700 जो कि उसका नियरेस्ट 10 है, और 22 का राउंड ऑफ करेंगे तो 20। ठीक है, तो ये हो गया 704 हमारा 700 एंड 22 इज नियरेस्ट 20। तब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 35, जो कि हमारा नियरेस्ट क्वोशिएंट होगा। तो वी कैन राइट हियर द क्वोशिएंट should be nearly 35। okay, now move to the next। now we have bigger number, that is thousands, so we have to take it nearest 100। the question is estimate the quotient 4534 divided by 326। तो अब हम इसका निकालते हैं राउंडेड ऑफ। 4534 का राउंड ऑफ हो गया हमारा 4500। इसी तरह 326 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 300। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 4500 डिवाइडेड बाय 300, तो हमारा आंसर कितना आता है 15। ओके, तो हम लिख सकते हैं द क्वोशिएंट शुड बी नियरली 15, कि जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या होगा, 15 के आसपास होगा। चलिए अब हमें इसी के बेसिस पे क्या दी हुई है, एक्सरसाइज 5.5 जो हमें सोल्व करनी है। तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन। एस्टिमेट द क्वोशिएंट इन द फॉलोइंग डिवीजन बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट 10। अब क्या करना है, हमें नियरेस्ट 10 राउंडिंग ऑफ निकालना है और फिर इसको सोल्व करना है। तो बच्चों 33 का राउंड ऑफ लिखेंगे। 33 इज राउंडेड ऑफ टू किसके नियरेस्ट होगा, 30 के। ठीक है, जब हम इसका टेंस निकालते हैं। एंड देन 5 इज राउंडेड ऑफ to nearest 10 is 10। okay, now we have to divide estimation। here we have 30 divided by 10 and 10 3s are 30, so we have 3। so we can write here the quotient should be nearly 3। ठीक है, जो भी क्वोशिएंट आएगा ओरिजिनली डिवाइड करने पे वो 3 के आसपास ही होगा। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। ठीक है, और हमें इसमें क्या लेना है, नियरेस्ट 10 लेना है, जैसा कि मेंशन किया हुआ है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ वी हैव word problems। so what are word problems? here we have some questions in story sums, like here we have example, there are 2585 zebras in a zoo। एक zoo में क्या है, 2585 zebras है। तो if there are 55 kids
तो कितने केज हैं, पिंजरे कितने हैं, 55, एंड ईच केज हैज एन इक्वल नंबर ऑफ जेब्रास। तो हर एक केज में जो भी जेब्रास हैं वो क्या है, इक्वल है। सो हाउ मैनी जेब्रास आर देयर इन ईच केज, सो हमें बताना है एक केज में कितने जेब्रास होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके स्टेटमेंट्स बनाएंगे जस्ट लाइक दैट। टोटल जेब्रास इन द जू इज 2585। नंबर ऑफ केजेस कितने हैं, 55। तो हमें नंबर ऑफ जेब्रास बताने हैं ईच केस में। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2585 को डिवाइड करेंगे 55 से, और डिवाइड करना हमने सीख लिया है। तो डिवाइड करेंगे अब, 2585 इज आवर डिविडेंड एंड 55 आवर डिवाइजर। तो 25 जो होगा वो छोटा होगा, लेस देन है 55 के, तो हम 3 डिजिट्स लेते हैं और इसको सोल्व करेंगे तो ये जाता है 4 टाइम्स पे। तो 4 टाइम्स पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 55 4 जो होता है 220। अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 0 गया 8, 5 में से 2 गया 3। अब नाउ वी हैव टू ब्रिंग डाउन 5, ओके, तो इट विल बिकम 385। और अब हम चेक करेंगे 385 55 के टेबल में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो उससे छोटा वाला नंबर लेंगे। तो 55 7 जा कितना हो गया, 385। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, एंड 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। इट मीन्स देयर इज नो रिमाइंडर। तो देयर आर 47 zebras इन ईच केस, वी कैन राइट लाइक दैट। ठीक है, कि एक केस में कितने होंगे जेब्रास, 47। ठीक है, और इसको हम चेक भी करेंगे। चेक कैसे करेंगे, सबको पता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू dividend. So here we have 55 as a divisor and 47 as quotient, and remainder is 0. Now we have to multiply it and we have 2585, that is our dividend. It means our answer is correct. Okay, now move to the exercise questions. Our exercise 5.6. The first question is, a car takes 18 hours to cover a distance of 1008 किलोमीटर। मीन्स कि एक कार जो है वो 18 घंटे लेती है, 18 आवर्स लेती है 1008 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। तो हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 आवर, तो वो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट बनाएंगे, टोटल distance covered in 18 hours. 18 hours, that is 1008 kilometer. Now we have to find out how much distance it is covered, okay, in 1 hour. तो हम लिखेंगे distance covered in 1 hour. तो 1 आवर के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1008 is divided by 18. ओके, तो अब हम पहले डिवाइड करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, अब 1008 को डिवाइड करना है हमें 18 से। सो वी हैव 18 5 90। तो अब इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0 एंड 10 में से 9 गया 1। नाउ वी हैव 8, ओके, so it becomes 108 and 18 6 are 108. अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो our quotient will be 56. So we can write car covered 56 kilometer distance in 1 hour. ठीक है, कि 1 आवर में कितना करेगी वो डिस्टेंस कवर, 56 किलोमीटर। और वी हैव टू चेक इट ऑल्सो। तो चेक करने के लिए हम सबको पता है क्या करना है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिवाइजर है हमारा कितना, 18, and we have quotient 56 and remainder is 0. तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो 18 6 108,
to 8, and 8 5s are 90, 90 or 10, 100. So we have 1000. So it is our dividend also. It means our division is absolutely correct. Okay. You have to solve all the question by yourself. So students, I have solved a question for you, and now you have to solve all these questions by yourself. Now we move to the next page. So there are some hot questions. First question is 829 divided by 829. I told you before कि जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो our answer will be 1. So here we have B option is right, that is 1. Now second question is that how many 10 rupees note can one get for 1000? तो 1000 rupees अगर हैं और इसमें 10 rupees के कितने notes आएंगे, तो we will divide 1000 by 10, that will become 100. So we have 100 notes of 10 rupees. Okay. Next question is the remainder obtained on dividing 300 by 9. 300 को हम क्या कर रहे हैं, 300 को हम डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो व्हाट विल बी आवर आंसर, 9 3s are 27, माइनस करेंगे 3, अगेन 9 3s are 27, and now we have 3 as a remainder, and we have to tell about what is the remainder. So remainder is 3, that is A option is correct. Next question is how many times the number 17 is there in 884. तो 884 में 17 कितनी बार आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 884 को हम डिवाइड करेंगे 17 से. तो 17 5 से होते हैं 85, 8 में से 5 गया 3, एंड ये हमने 4 ब्रिंग डाउन किया, तो 7 2s are 34. Remainder will be 0 and our quotient will be 52. So that is C option 52. Next, the remainder obtained on dividing 7291 by 100. अब 100 से अगर हम 7291 को डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7200. इसका क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा पूरा और बचेगा हमारे पास P option 91, that is our correct option. Okay, now we have fun activity and there are some questions also. Find each quotient, remainder and match the following. So we have to first divide these questions, solve this question, and then we have to match this. Just like 10 6 are 60. So here quotient is 6 and remainder is 0. So it will be matched from D. Okay. So these are our question. You have to solve all these question by yourself. So student, is a math lab activity that you will do with your teacher at your math lab. Okay. I hope all the concept of this chapter has been clear to you all. Keep on doing practice. It will make you perfect. We'll meet you in the next class. Meanwhile, take care of yourself. Goodbye.